Welcome back. This is the second part of your chapter, The Making of Nationalism or National Movement 1870s to 1947. So there we have discussed about the Indians' demand. Okay. Now we will discuss about the economic issues. So Congress also raised some issues related to economic issues that they shared that Britishers were leading to a poverty and famine, भुखमरी और गरीबी को वो बढ़ा रहे हैं और he is not improving the peasants and zamindars conditions, and they were exporting grains to the Europe as our India was having a shortage of food. Okay, so this is also a main problem which is discussed here. Now coming to the next topic, that is freedom is our birthright. So freedom is our birthright. This is very famous slogan which is given by your Tilak. Okay, जिनको पूरा नाम है बाल गंगाधर तिलक. In Bengal, Maharashtra and Punjab, leaders such as Bipin Chandrapal, Bal Gangadhar Tilak and Lala Lajpat Rai was probably known as Lal, Bal and Pal, strongly criticized the policies of colonial government. So these people were strongly opposed to the colonial government. Colonial government means Britishers, and demanded that they demanded that Swaraj. Tilak declared, freedom is my birthright and I shall have it. मतलब हिंदी में अगर आप देखें तो आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और ये हमें चाहिए. ठीक है, स्वराज यानी कि पूर्ण स्वराज मतलब आज़ादी. In 1905, Viceroy Curzon announced the partition of the biggest provision British of India, Bengal, which included Bihar and part of Odisha. So there is in 1905 वॉइसरॉय क्रूसोन ने पार्टीशन किया जो आपका वेस्ट, जिसको आप वेस्ट बंगाल कहते हैं, वेस्ट बंगाल विच इंक्लूडेड बिहार एंड पार्ट ऑफ उड़ीसा, इनको अलग किया गया. द पार्टीशन ऑफ बंगाल infuriated people all over India, and both the moderate and the radical protested the partition. So Viceroy have done this partition, and due to this, people were not very much happy about it. So your one of it is your moderate and radical members. Moderate मैंने बताया था, हिंदी में इसको कहा जाता है बेटा नरम दल. ओके, नरम दल और गरम दल. ठीक है, मॉडरेट जो हैं ये इनको नरम दल कहा जाता है, वो लोग जो बहुत ही शांत स्वभाव से काम करना चाहते हैं, और रेडिकल जो प्रोटेस्ट पे विश्वास करते हैं. तो नरम दल और गरम दल, रेडिकल मीन्स गरम दल, वो लोग जो प्रोटेस्ट पे विश्वास करते हैं. तो जब बंगाल का डिवीजन हो रहा था, सॉरी पार्टीशन हो रहा था, इसको अलग किया जा रहा था, तो आपके ये लीडर्स जो थे बोथ मॉडरेट एंड रेडिकल, दे वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट दिस पार्टीशन. Large public meetings and demonstrations were organized people in order to show they are united, and tied Rakhi on each other's wrist and celebrated Raksha Bandhan, and this leads to the birth of Swadeshi movement. तो बहुत सारी मीटिंग हो रही थी, पब्लिक मीटिंग करवाई जा रही थी, लोगों को समझाया जा रहा था, लोग इसके लिए प्रदर्शन कर रहे थे, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे. और डिमॉन्स्ट्रेशन किस तरीके से, एक दूसरे को राखी बांध करके कि पार्टीशन मत करिए, वी वर हैप्पी विद द बंगाल, डोंट डिवाइड अस. ओके, बांग्लादेश को अलग कर रहे थे उस समय 1905 में. So they just tying a rakhi in each other hand, and they showing that no, we don't want to be partited, or there should be no partition. And this shows that they celebrated Raksha Bandhan, and this leads to the birth of Swadeshi movement. इस वजह से हमारे देश में स्वदेशी मूवमेंट आया. ठीक है, स्वदेश के लिए यानी कि अपने देश के जो लड़ रहे हैं आप, स्ट्रगल दैट अनफोल्डेड कम्स टू नोन एज स्वदेशी मूवमेंट. स्ट्रॉन्गेस्ट इन बंगाल बट विद द echo elsewhere too. In
Deltaic Andhra for intense, it was known as the Vande Mataram movement. So in South, it is reached to be known as a Vande Mataram movement, and this is the starting of your national movement. So first of all, just do one thing. Swadeshi movement is very important. Start underlining the movements from this page. Okay, so you can see how people were marching for that particular thing against partitions. Okay, this is how the Swadeshi movement start. Now coming to the other things. Okay, see this picture. He was a person, Lala Lajpat Rai. Okay, coming to the next topic of your chapter, and that is the growth of mass nationalism. The growth of mass nationalism, किस तरीके से ये ग्रोथ हुई मास नेशनलिज्म, मास मतलब इतने ज़्यादा नंबर्स में. सो आफ्टर 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल. After 1919, the struggle against Britain rule gradually became a mass movement involving peasants, tribals, students, and women in a large number, and factory workers. आफ्टर 1990 क्या हुआ, लोगों ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया गया, एंड दे स्टार्टेड इन अ लार्ज नंबर. नॉट ओनली द men were participating, now women and children were also participating. Even the social last group, मतलब in society we have a last group, they also took part. For example, your factory worker. The First World War broke out in 1914 and alerted that economic and political situation in India. So at that time 1914 के टाइम पे आपका वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन जो खराब हो रही थी, क्योंकि सारे के सारे रिसोर्स आपके वर्ल्ड वॉर में यूज हो रहे थे, जिसकी वजह से एक अलर्ट या एक चेतावनी मिल रही थी इंडिया को कि आपका इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन अभी खराब होगा. India was dragged into a war, and this led to a huge rise in defense expenditure of government of India. And you know that India never believe in fight; they always believe in peace. So it is your Britain who were fighting against this world war. So they indulge India also. This drag मतलब इसको इंडिया को खींचा गया, इंडिया को इस चीज में डाला गया. सो एक्सपेंडिचर जो भी था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे आया, एंड ड्यू टू दिस इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर एंड डिमांड फॉर war supplies leads to a sharp rise in a price which create great difficulties for the common people. Due to this एक्सपेंडिचर इतने ज़्यादा हो गए थे फॉर मिलिट्री एंड देयर सप्लाई, आर्म्स हुए या उनकी फूड हुई, तो ये सारी चीज़ें वर्ल्ड वॉर में जा रही हैं. लोग जितने डेथ हो रहे हैं वो इंडियन के हो रहे हैं. ड्यू टू दिस एट द टाइम व्हेन वॉर इज स्टॉप देयर इज वाज अ क्राइसिस ऑफ फूड, and at that time they started uh, making this, they started rising the price of that any product. Due to this people were of Indians were not very sufficient to buy these things, and the war leads to a British to expand their army. The government forced the villages in India to send their soldiers for an alien cause. और जिस वजह से ब्रिटेन ने रूल किया, कुछ एरिया उनको मिल गए फॉर अ कॉलोनी, एंड दे सेंट विलेज पीपल टू दिस एरिया इन अ एलियन वे. एलियन मतलब वहाँ आप जा रहे हो जहाँ आपको कुछ पता ही नहीं है, तो वहाँ पे इनको ट्रांसफ़र किया गया. So 1970 there was a revolution in Russia. News about peasants and workers struggles and idea of socialism circulated widely, impressing the Indian nationalist. So किस तरीके से कॉलोनी जो है वो बन रही है, इस चीज़ को बिग न्यूज़ बना करके रशिया में दिखाया गया. नाउ कमिंग टू द महात्मा गांधी जी. नाउ द एडवेंट ऑफ महात्मा गांधी. अब हम बात करते हैं महात्मा गांधी जी के बारे में. ये कब हमारे देश में आए और कब इन्होंने ये रियलाइज़ किया कि हमें भी अब इसमें कंट्रीब्यूशन देना चाहिए, एंड हाउ ही बिकम द फादर ऑफ आवर नेशन. सो महात्मा गांधी वॉज बोर्न ऑन 2
और 2 October 1869 at Porbandar in Gujarat. Very very important question, and it is GK question. Okay, he studied law in England and went to South Africa to practice law and stayed there for 20 years. So 20 years he just in the foreign country. He emerged as a mass leader of India. इनको कहा जाता है मास लीडर बिकॉज इनके खड़े होने पे या इनकी एक सभा को अगर ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो लाखों में लोग इन पार्टिसिपेट करते थे. इन साउथ अफ्रीका गांधी जी स्ट्रगल फॉर द इंडियन इन नॉन वायलेंट march against racist, skin color, discrimination, and had earned great respect and popularity both at national and international level. So while he is studying or practicing in South Africa for 20 years, he come across with this struggle for Indians and for main against रेसिस्ट यानी कि स्किन कलर का जो डिस्क्रिमिनेशन था वो साउथ इंडिया में चल रहा था. ड्यू टू दिस गांधी जी टुक अ पार्ट एंड ही मार्च फॉर इट विथ नॉन वायलेंट. यू नो गांधी जी इज नॉन वायलेंट पर्सन एंड जिसकी वजह से वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी सॉर्ट आउट की उन्होंने और इनको पॉपुलैरिटी मिली इन नेशनल और इंटरनेशनल लेवल यानी कि इनको सबने जाना. Now coming to the Mahatma Gandhi spent his initial year in India traveling throughout the country. So when he returned back, he just traveling throughout the country, understanding the people, their needs and their overall situation. अब ये चीज़ बड़ी अलग चीज़ है कि आप आए हैं अपने देश में और आप चीज़ों को देख रहे हैं. अब ये ऐसा क्यों? बिकॉज ये माना जाता है जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कहा जाता है जिनको, उन्होंने ये समझाया उन्हें कि अगर आप इंडिया को जानना चाहते हैं तो सबसे पहले आप इंडिया को समझिए, इंडिया को ट्रेवल करिए, लोगों को समझिए, लोगों की नीड्स को समझिए और तब आप इंडिया के बारे में और इंडिया को समझने में ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे. सो हेयर अगेन क्वेश्चन आता है कि आपको क्या ढूंढना है. आपको एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढना है कि हु इज़ द पॉलिटिकल लीडर ऑफ और पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, जिन्होंने ये सजेस्ट किया कि यू जस्ट ट्रेवल थ्रू आउट द कंट्री एंड सी व्हाट द पीपल वांट एंड अंडरस्टैंड देयर थिंग्स. Gandhi ji launched local movement in Champaran, Kheda and Ahmedabad in which he received success. गांधी जी, ये एक बहुत ही छोटी स्टोरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन आता है व्हेन गांधी जी रिटर्न बैक which 3 movement he started first. So you have चंपारण, खेड़ा एंड अहमदाबाद, जहाँ इन्होंने पेजेंट्स यानी कि फार्मर्स के लिए लड़ाई लड़ी क्योंकि इन्हें फार्मर्स को ज़बरदस्ती नील की खेती करवाई जा रही थी जो कि फार्मर्स नहीं चाहते हैं करना, क्योंकि इससे क्या होता है बेटा, ये जो क्रॉप है इसकी वजह से आपकी जो फील्ड होती है या आपका जो खेत होता है वो उसकी फर्टिलिटी थोड़ी कम हो जाती है, थोड़ी क्या बहुत कम हो जाती है, वो दूसरे क्रॉप के लिए फिर सुटेबल नहीं रहती, तो वो उसके अगेंस्ट थे. और ब्रिटिशर्स की एनी हाउ दे वांटेड टू कि नहीं ब्रिटिश फार्मर्स जो हैं ये खेती करें, बट गांधी जी हैज़ launched some local movement here and he received some success here. Due to this, people started knowing Gandhi ji in India also. Gandhi ji method of fighting was known as satyagrah, which was based on principle of truth and non-violence. So गांधी जी का एक ही प्रिंसिपल है, सभी का एक प्रिंसिपल होता है, आपका खुद का भी कोई प्रिंसिपल होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं इससे ज़्यादा नहीं कर सकता, या मैं चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोल सकता, या चाहे कुछ भी हो जाए मैं पढ़ाई करके ही सोऊंगा. तो सबका अलग अलग प्रिंसिपल होता है. वैसे गांधी जी का प्रिंसिपल क्या था? सत्याग्रह. सत्याग्रह मतलब होता है मैं हमेशा ट्रुथ बोलूँगा यानी कि मैं हमेशा सच बोलूँगा. एंड सेकेंड इज नॉन वायलेंस. ही बिलीव इन नॉन वायलेंस. जो काम शांति से हो जाता है वही बेस्ट होता है. ओके, नाउ कमिंग टू द सेकेंड टॉपिक, द रॉयल सत्याग्रह.
रॉयल सत्याग्रह के बारे में हम पढ़ते हैं। In 1919, the government passes the Rowlatt Act and empowered the provincial government to search any place and arrest any person whom it suspected without a warrant. So, Rowlatt Act क्या था कि इसमें ये बताया गया कि अगर गवर्नमेंट को किसी पे प्रोविंशियल एरिया पे शक है, सो ही कैन सर्च एनी प्लेस एंड अरेस्ट एनी पर्सन whom ही इज सस्पेक्टेड, यानी कि उनको अगर किसी पे शक है किसी भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट पे, तो वो उनको अरेस्ट भी कर सकती है और उनको सर्च भी कर सकती है। गांधी जी लॉन्च्ड अ सत्याग्रह अगेंस्ट द रॉलेट एक्ट which curbed the fundamental rights such as freedom of expression and strengthened the police power. So गांधी जी ने एक मूवमेंट शुरू की जिसमें उन्होंने ये बताया कि वो सत्याग्रह के हिसाब से ही सारी चीज़ें करेंगे। एंड ही ऑल्सो डन वन थिंग दैट इज महात्मा गांधी एंड मोहम्मद अली जिन्ना क्रिटिसाइज द एक्ट एज ए डेवलिश एंड ट्रेनिकल। डेवलिश एंड ट्रेनिकल वर्ड बोला गया इस एक्ट को क्रिटिसाइज करके। देन गांधी जी asked the Indian people to observe 6 April 1919 as a day of non-violent opposition to this act as the day of humiliation and prayer. Hartal, strike, Satyagrah Sabha was set up by the launch of movement. In April 1919, a nationwide hurtal was launched and government used brutal measures to suppress them. तो गांधी जी ने कहा कि अप्रैल 6 अप्रैल 1919 को हम सब हड़ताल करेंगे, हम कुछ भी काम नहीं करेंगे, हम सारी चीज़ बंद रखेंगे। और ड्यू टू दिस गवर्नमेंट जो थी आपकी, दैट इज़ योर ब्रिटिशर्स, दे सप्रेस, वो मजबूर कर रहे थे लोगों को, मार रहे थे, पीट रहे थे कि वो किसी भी तरीके से ये स्ट्राइक को तोड़ दें। द जलियांवाला बाग मैसेकर इन्फेक्टेड बाय द जनरल डायर इन अमृतसर ऑन बैसाखी डे was a part of this repression. आपने सुना होगा जलियांवाला बाग मैसेकर, वो इसी टाइम की सिचुएशन है जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे और जनरल डायर ने सभी जगह से सभी को घेर करके यहाँ पे उन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पे सभी को गोलियों से मार दिया जिससे बहुत ज़्यादा लोगों का डेथ हुआ। ओके, जलियांवाला बाग मैसेकर was in 13 अप्रैल 1919, जहाँ पे लोग जलियांवाला बाग एक गार्डन था, वहाँ पे बैसाखी सेलिब्रेट कर रहे थे और वहाँ पे पब्लिक मीटिंग भी थी। बट जनरल डायर, अ ब्रिटिश ऑफिसर, एंटर जलियांवाला बाग एंड लॉक ऑल द एंट्रीज एंड ऑर्डर्ड हिज ट्रूप्स टू स्टार्ट फायरिंग एट क्राउड। तो उन्होंने अपने मिलिट्री पीपल्स को कहा कि जस्ट bring out fire and thousands of people were killed. The country was shocked by this incident. All Indian leader protested strongly against this cruel act. तो लोगों को बहुत गुस्सा था, बहुत खफा भी थे क्योंकि इसमें सिर्फ हिंदू नहीं, मुस्लिम और सिख सभी कम्युनिटी के लोगों का लॉस हुआ था, जिसकी वजह से मुस्लिम और इंडियन जो हैं एक साथ इस चीज़ के लिए खिलाफ थे और इस वजह से एक यूनिटी भी बनी। ठीक है, अब इस यूनिटी का क्या असर हुआ हम आगे पढ़ लेते हैं बच्चे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर खिलाफत, एगिएशन एंड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। In year 1920, the British imposed a harsh treaty on the Turkish Sultan or Khalifa, and he was deprived of his political power and authority. सो टर्किश सुल्तान और खलीफा जो इंडिया में आ रहे थे उन पर बहुत ज़्यादा चीज़ें इम्पोज की, यानी टैक्स को इम्पोज किया गया पॉलिटिकल पावर दिखा के और अथॉरिटी दिखाकर। द खलीफत मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय मोहम्मद अली एंड शौकत अली हु wished to initiate a full-fledged non-corporation movement against the British under the leadership of Gandhi ji and demanded Swaraj.
सो खिलाफत मूवमेंट में ये था कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने इसको लॉन्च किया था और उन्होंने एकदम बॉयकॉट कर दिया था कि हम कॉर्पोरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर के साथ। और गांधी जी के लीडरशिप में रह करके इन्होंने डिमांड की स्वराज। ठीक है, इसीलिए इसका नाम है खिलाफत। खिलाफत मतलब आप किसी के खिलाफ हो, और इंग्लिश में आप उसको कह सकते हैं नॉन कॉर्पोरेशन। ओके, सो इन द ईयर 1921 to 22 दिस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट गेन्ड मोमेंटम, मतलब अच्छा अचीवमेंट मिला। थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल्स, कंट्रोल्ड schools and colleges. Many lawyers such as Motilal Nehru, C.R. Das, C. Rajgopalacharya and Asaf Ali gave up their practice. तो जितनी भी चीज़ें गवर्नमेंट के कंट्रोल में थी वो सभी लोगों ने बॉयकॉट कर दी। पीपल विलेज में बॉयकॉट कर रहे थे